आज की सायरा और वो जो पहले वाली सायरा थी जिसने शुरू किया था, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस फील करती हो आप? Anyone can pick up their phone if they have access to a good phone. They can pick it up and they can become an influencer, a blogger, and they can be in with the celebs. लेकिन हम पाकिस्तानी उन्हीं I won't name the celebs, but उन्हीं वाले celebs को follow करें जिनकी already इतनी following है. हम उन्हीं को promote करते रहते हैं. You know, हम food business is very lucrative in Lahore, especially if you talk about Lahore, because Lahoris love to eat. हम मर्द जो है ना, पहलवान जो हैं, वो छाए हुए हैं. So how was it for you? मतलब what are the challenges that you faced in your career? मुझे कभी feel नहीं हुआ कि oh my god I'm not dressed appropriately or I'm not looking right or you know there are eyes on me. Saira, आप ये बताएं कि what's your favorite food? It's not about कि Pakistan, oh my god our country is so corrupt that they are giving trash food to the people. It's just that the making techniques are very different. Fashion में क्या क्या चल रहा है आजकल, क्या सीन है फैशन इंडस्ट्री जो हमारी collections कौन सी अच्छी आ रही हैं? Our fashion scene has now gone global. I mean if you look at Bollywood stars, so many of these women, Saira Agha, they are wearing more Pakistani fashion people than they are wearing their own. Welcome to Lollipop. You're watching Niado Lifestyle. मेरा नाम है वकास अबीब राना. मेरे साथ मौजूद हैं कैसर and we have with us Saira Agha. सायरा जो हैं वो एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, फैशन, एंटरटेनमेंट, कल्चर, आर्ट्स, यू नेम इट, शी हैज़ कवर्ड इट ऑल. एंड सायरा का जो करियर है वो तकरीबन 13 साल पर मुहित है. तो सायरा नोज़ इट ऑल एंड टुडे वी गोना मेक श्योर कि हम सायरा से सारी बातें पूछ लें, कोई बात जो है ना वो छोड़नी नहीं है. तो सायरा, वेलकम टू द पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम. आपका बहुत शुक्रिया आप आई. Thank you so much for having me, Vikas. First things first, I'm an avid watcher of your show. And I've been following up a couple of past episodes also, which I found to be really fun and really cool. So thank you for having me. Thank you so much. तो सायरा, पहले तो ये बताएं कि आप जब इस इंडस्ट्री में आई थी, मतलब आपने इतना कुछ इसमें इस इंडस्ट्री में की evolution देखा है. You were friends with all the designers, you were friends with all the people who जो भी स्टेक होल्डर हैं उन सबको. तो ये जरा आज की सायरा और वो जो पहले वाली सायरा थी जिसने शुरू किया था, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस फील करती हो आप? Well, Vikas, thank you for this question. Because it's been so many years, I was still a college student when I started out. I was like 22, and because I was a business student, I didn't have any prior knowledge of mass communication or journalism or the do's and don'ts of working in a newsroom. I had no knowledge regarding that. So whatever I learned, that was on job. That was while I was at the premise of my office. And I feel that I mean, it's fair to say I was a loser nobody. I didn't know anything. I didn't know anyone. But also I feel that back at that time, print media was still a sensation. It was still relevant. People enjoyed picking up a glossy magazine or flipping through the newspaper pages. Because, social media hadn't exploded onto the scene like that. This I'm talking about 2010. Gradually print media was on a decline, but so with the explosion of social media into the scene, now I feel that so much has changed. The way you convey news, the way people are projected into the film industry, into the drama industry. I mean, now anyone can pick up their phone if they have access to a good phone. They can pick it up and they can become an influencer, a blogger, and they can be in with the celebs. And even the celebrities enjoy that. I mean, they would rather be presented or showcased on somebody's Insta page with so many followers than be printed in a newspaper. So I feel social media has transformed the world as we speak. अच्छा Saira, so this is something that we're going to talk about. ये जो influencers वाला मामला है, we'll discuss that. लेकिन मुझे ये बताओ कि ये जो फैशन शोज होते हैं, इसमें जो ये फ्रंट रो होती है, पहली रो होती है, इसकी क्या कहानी है? बिकॉज आई फील कि ये प्लेसमेंट्स भी पक्की होती हैं कि पहले को शुरू में कौन बैठेगा, फिर कौन बैठेगा, फिर कौन बैठेगा, वो वाला मामला भी था. एंड ऑल्सो अब वो पहले तो प्रिंट वाले जो थे उनकी बड़ी जबरदस्त जगह होती थी, ब्रॉडकास्ट वालों को तो लिफ्ट ही कोई नहीं होती थी ना, वो बेचारे तो बाहर वाले कवरेज के लिए होते थे. तो
अब ये हुआ है कि अब इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, व्लॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, तो उनका एक अलग सीन हो गया हुआ है. तो ये जरा थोड़ा हमें बताएंगे ये सिटिंग अरेंजमेंट और फैशन शोज की जो sort of politics है वो किस तरह की है? Well, that is a very good question. I don't think I've been asked this before. Well, I would say that yes, you are right. Back in the day when I used to attend fashion shows, because I had just started out, but because I was associated with the leading publication, so my placement was always in the second row. And the front row was for the A-list magazine editors. The newspaper editors always had the second row, and the editors for magazine, like glossy magazines, like there was Sunday, then there were Libas, and then there were so many others, which I can't really remember from the top of my head, but उनकी हमेशा front row होती थी. तो लेकिन तब भी आपको एक क्रेडिबिलिटी का एहसास होता था कि ओके नाउ दीज आर द लीडिंग जर्नलिस्ट फ्रॉम वेरियस पब्लिकेशंस और वो सारे फ्रंट रो के ऊपर बैठे हुए हैं टू अटेंड द शो. बट नाउ बिकॉज मैं सोशल मीडिया के एक्सप्लोजन की बात कर रही थी, अब इस तरह है कि whoever is on good terms with the management of the fashion show, they get to back the front row also. तो अब क्रेडिबिलिटी का उस तरह से कोई हिसाब नहीं रहा, बिकॉज purchased million followers वाले influencers भी they are rubbing shoulders with those editors जिन्होंने 20-20 साल से एक अदारे के साथ काम करके अपना नाम बनाया है. So yeah, I mean now whoever is on good terms with the management, जिसके पास भी थोड़े थोड़े से पैसे हैं, 4 आने, और उसने अपने followers खरीद लिए हैं, वो भी front row पे बैठ सकता है. So if you need a pass for a fashion show, you know who to contact. I'm telling you, Saira can get you in. तो अच्छा, लेकिन ये देखो ना कि ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है हमारी जो इंडस्ट्री है कि वो इवॉल्व सी हो गई है ना. अब एक नया उसमें पर्सपेक्टिव सा आ गया हुआ है और वो चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती जा रही हैं. सिमिलरली जो लोग हैं, जो मतलब डिज़ाइनर्स हैं, वो जिस तरह ट्रीट करते थे मैगजीन के हों या प्रिंट न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट हों उनको, और अब जो एक नई वो जनरेशन आ गई है उसमें भी डिफरेंस आ गया. वो तो अलग बात है ना. लेकिन कंटेंट के हिसाब से जो अवाम है उन तक जो कंटेंट पहुंच रहा है उसमें क्या डिफरेंस है? बिकॉज ऑब्वियसली एक जर्नलिस्ट जब कोई बात करेगा, जब व्हेन यू विल कमेंट ऑन समबडीज जोड़ा, दैट विल बी अ बिट डिफरेंट फ्रॉम समबडी हु इज एन इन्फ्लुएंसर. उसका तो काम ही है ना कि मुझे ये जब तक मुझे इन नहीं रखेंगे या लिफ्ट नहीं कराएंगे तो मैं कैसे कमेंट कोई उसमें कर सकती हूँ. Vikas, I feel that these fashion designers have it very easy now. पहले उनको एक मॉडल हायर करनी पड़ती थी और वो मॉडल ने अपना, और वो बहुत लाइक क्रेडिबल जानी मानी मॉडल होती थी, वो अपनी फीस उनको चार्ज करती थी उसने उनके, और वो पर आउटफिट के लिहाज से फैशन डिज़ाइनर्स को चार्ज करती थी कि अगर आपके 16 जोड़े हैं तो मैं पर आउटफिट आपको चार्ज करूँगी जितना भी उसने करना हो. लेकिन अब सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा घर बैठे बैठे मॉडल्स बन गए हैं बिकॉज उन्होंने फॉलोअर्स परचेज कर लिए, देर नाइस लुकिंग, देर ग्रूम्ड एट्सेट्रा. तो अब फैशन डिज़ाइनर्स उन वाली लड़कियों को हायर कर लेते हैं जो उनसे, अब जो मॉडल से आधे पैसे उनको चार्ज करें, आधे से भी आधे, लेकिन क्योंकि उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है तो वो उनके कपड़े पहनकर एक बहुत अच्छा सा उनको ना डिस्प्ले दिखा देते हैं. तो फैशन डिज़ाइनर्स ने बहुत पैसे बचाए हैं थ्रू दिस. देयर आर सो मेनी ऑफ दिस फैशन डिज़ाइनर्स विच आई वोंट नेम, लेकिन मैं अभी बिकॉज लॉन इज़ नाउ आउट, बिकॉज द सीजन इज़ हियर, मैं देख रही थी कि ungroomed models, faces that I had not even seen, they don't even know how to carry a joda, but these big fashion names, उन्होंने उनको रखा हुआ है उनके लॉन के जोड़ों की डिस्प्ले करने के लिए, just because they want to save a few pennies, you know. So yeah, I mean और फिर ये जो अभी आपकी बात है, आई थिंक कि जो जर्नलिस्ट की जो क्रेडिबिलिटी कि उन्होंने इतने अरसे से अपना नाम बनाया और लीडिंग पब्लिकेशंस के साथ एसोसिएटेड हैं, वो पाकिस्तान में अब ये चीज़ पेरिश हो गई है. इट्स इन द वेस्ट नाउ. वेस्ट की अभी पेरिस फैशन वीक इज़ अंडर वे, मतलब उनकी फ्रंट रो में देख रही थी, सारे उनके पब्लिकेशंस ही के एडिटर्स और जर्नलिस्ट बैठे हुए थे. आई कुडंट स्पॉट एनी इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर उनकी फ्रंट रो पे, बिकॉज वहाँ पे इस चीज़ को मेरिट पे लिया जाता है, बट नॉट हियर इन पाकिस्तान. So वो लैंडस्केप जो है ना वो चेंज हो गया.
अच्छा, तो अब सायरा आपने इतना कुछ किया हुआ है, बिकॉज आपका अगस्त में एक पूरा वो आप सिलसिला करती हो जो बेस्ट ऑफ पाकिस्तान होते Pride of हैं, Pakistan. प्राइड ऑफ पाकिस्तान के नाम I से do. डेली टाइम्स न्यूज़पेपर दैट सायरा इज एसोसिएटेड विद, Yeah. उनके लिए यू डू दैट, और उसमें जितने भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शख्सियात होती हैं उनको आप इंटरव्यू करते हो, I और do. उनका एवरी डे एक नया every day, इंटरव्यू every day, छपता है, और 30 दिनों के लिए, है ना, Definitely. मतलब टू मच वर्क. It is. तो It is. Oh my God. I feel कि मोटिवेशन इस तरह का काम करने के लिए, the kind of work that you do, the hours that you put in, that's just enormous, ना? It is, Vikas, but हर एक की priorities होती हैं, and when I started working up until now, मेरा aptitude same रहा है. I have been very passionate about the work I do. I mean, my office is like my second home. Also, I believe my job as a lifestyle journalist is to promote arts and culture. So ये जो Pride of Pakistan को जो feature में run करती हूँ, and it's been going on for years now, मैं इसके साथ बहुत अग्री करती हूँ. नॉट बिकॉज कोई मुझे प्रोजेक्ट मिल गया है तो मैंने ये अंडरटेक करना है. आई फील कि देयर सो मेनी अनसंग हीरोज आउट देयर हु आर डूइंग अमेजिंग वर्क एंड दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड अब्रॉड आल्सो. लेकिन हम पाकिस्तानी उन्हीं आई वुड नेम द सेलेब्स, बट उन्हीं वाले सेलेब्स को फॉलो करें जिनकी ऑलरेडी इतनी फॉलोइंग है. हम उन्हीं को प्रमोट करते रहते हैं. हम आतिफ असलम को करते रहते हैं, हम लोग वसीम अकरम को कर रहे हैं, माहिरा खान को कर रहे हैं. I mean, I'm not taking away from what they have achieved. They're huge stars in our country and I love and respect them. But the unsung heroes, जिनको ये वाली projection, promotion नहीं मिलती है. So through this feature that I'm running, I feel that they should be out there. People should know about them. So it's not that I get bored or motivation इस तरह आती है कि when they tell me their stories, oh my God, because मतलब their struggles and the way they have achieved what they're trying to achieve, आपका खुद से दिल करता है ऐसे लोगों को प्रमोट करने को. Brilliant. So yeah. When Saira says ना कि her work is like a second home, she's not kidding. सायरा की जो चेयर है ना वहाँ पर, वो भी specified, tagged है वो. Nobody can mess with that chair. Once some editor did mess with her chair and we made sure that nobody dares to do that again. ये डेडिकेशन है. तुम चेयर्स वगैरह इधर उधर कर लेते हो ना ऑफिस में. सायरा की थी. सायरा ने उसको कहा you can't do that, and then she called me. मैं कहा सायरा बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता. ये बेसिकली डेडिकेशन है ना अपने वर्क से, कि बंदा एक जो है तो वो फुली 100% कहता है कि मैं जो है तो अपना ये एक स्पेस बनाया हुआ है, स्पेस के अंदर जो है तो कोई भी जो है तो नो बट. इट्स सो मच फन टू वर्क विद सायरा, बिकॉज सायरा को जो है ना मुख्तलिफ खाने भी आ रहे होते हैं ऑफिस में, गिफ्ट्स एंड फूड एंड व्हाट नॉट. वेरी बेनिफिशियल इफ यू आर फ्रेंड्स विद सायरा. अगर आपके पास फ्रेंड्स लिस्ट के अंदर कोई वैकेंसी हो तो आपने मुझे बताना. बेटा यू अप्लाई, देयर इज अ लॉन्ग वेटिंग लिस्ट. नॉट दैट इजी. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि एज यू मेंशन अर्लियर कि जो शिफ्ट आया था न्यूज़ मीडिया के अंदर फ्रॉम प्रिंट टू सोशल मीडिया, तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेजेस हैं बिल्कुल जो कि कवरेज देते हैं न्यूज़ की डेली. तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है आप उसको कैसे देखती हैं कि उनकी जो न्यूज़ होती है वो होती है, मतलब उसके आप रिलाई कर सकते हैं उसके ऊपर? वेल कैसर, right? Yes. Kaise, that is also a very good question. No, I feel it's a big risk with these because कुछ तो इनमें से credible और factual stories दे रहे हैं, लेकिन कुछ तो मतलब हेयर से रूमर्स के ऊपर बेस्ड. और आपको पता है ऐसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ पोर्टल्स या ऑनलाइन पोर्टल्स ही हैं, दे आर सूड लेफ्ट राइट एंड सेंटर बाय ऑल द सेलेब्स के इसमें. तो अब देखो ना, वर्किंग इन अ न्यूज़ पेपर इज़ डिफरेंट. अगर मैं कुछ स्टोरी रिपोर्ट कर रही हूँ या मैं फाइल, खैर मैं अपनी एग्जांपल तो नहीं दूंगी बिकॉज आई हैव दैट सीनियरिटी एंड दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रिंट वॉट एवर आई वांट, बट मोस्टली व्हाट हैपन्स इन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस, अखबारों में ये होता है कि आपकी रिपोर्ट चेक होती है, उसके वो वेरीफाई होती है, उसके फैक्ट चेक होते हैं, फिर उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, उसकी क्या कहते हैं क्वालिटी होती है, और फिर जब ये सारे चैनल से वो गुजर जाए फिर वो जाकर प्रिंट होती है. सो लेकिन न्यूज़ पोर्टल्स, ये जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, इनमें ऐसा कोई हिसाब नहीं है. उनको जो भी रूमर उनके कान में जो भी डाल रहे हैं, वो क्लिक बेट आइटम जो भी उनको मिल रही है, वो थोड़े से लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए वो फ़ौरन लगा देते हैं. लेकिन फिर उसके बाद में आई थिंक भुगतते भी हैं, बिकॉज फिर सेलेब्स उनको सू भी कर देते हैं, और फिर इट ब्रिंग्स
brings a bad name to your जो भी है वो short lived glory वाला मामला short lived glory बिल्कुल वो इस तरह का सीन चल रहा होता है। तो सायरा ये बताओ ना कि ये अब हमारे यहाँ आप देखो ना कि ये भी तो कल्चर है। ये अभी एक खबर आई हुई थी कि वो परवेज मुशर्रफ की जो है ग्रैंड डॉटर वो उसकी कुछ तस्वीरें वगैरह लगी हुई थी, डिफरेंट पब्लिकेशंस ने लगाई हुई। तो वो बाद में जब हमने थोड़ी सी रिसर्च की पता चला तो वो तो नहीं है उसकी ना वो ग्रैंड डॉटर, लेकिन वो चल रहा था तो वो वाला सीन जो है ना तो यू नो वो भी होता है। लेकिन यू नो आपकी इंटरेक्शन जो होती है डिफरेंट इंटरव्यूज डिफरेंट इवेंट्स वगैरह पे, तो कुछ बताओ ना कोई अंदर की बात के क्या सिलसिले होते हैं, कोई इंटरेस्टिंग कोई वाकया बताओ। जब डिजाइनर्स के साथ हाँ डेफिनेटली जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने को मिलती है जैसे फैशन शोज हो रहे होते हैं। खैर अब तो द फैशन शोज आर ऑन अ डिक्लाइन, जब से यू नो पोस्ट कोविड अब उस तरह जो बड़े बड़े फैशन वीक्स होते थे 3-3, 4-4 डेज के, देयर वाज PFDC, देन देयर वाज BCW एंड देन देयर वाज सो मेनी अदर्स जिनके मैं नाम भूल गई हूँ। दे वर स्पॉन्सर्ड एंड फंडेड बाय दीज बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज। अब वो वाला फीवर एक ख़त्म हो गया है पोस्ट कोविड। अब अगर किसी डिज़ाइनर ने को फैशन शो करना भी हो तो वो सोलो शो रख लेते हैं अपने घर में या किसी भी जगह किसी के फार्म हाउस पे। इन फैशन शोज पे या किसी भी इवेंट पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को ये मिलती है कि कुछ लोग इनवाइट्स और पासेस के बगैर ही आ जाते हैं कि कहीं हमारा जैक लग जाएगा और हम लोग एंटर हो जाएंगे और यू नो हमें एक ग्लैमरस एनवायरनमेंट के अंदर बैठने का मौका मिल जाएगा। और जो झगड़े हो रहे होते हैं बिकॉज बाउंसर्स होते हैं, गार्ड्स होते हैं, वो हर एक को तो नहीं आने देते विदाउट एन इनवाइट और अ पास। तो बाकायदा मतलब उनकी हाथापाई हो रही होती है जिन लोगों ने एंटर होना होता है। और पीपल आर सच इडियट्स कि अपनी फैमिलीज को भी ले आते हैं साथ या अपने फ्रेंड्स को भी ले आते हैं विदाउट इनवाइट्स और पासेस। सो यू नो दैट इज अफसोस भी हो रहा होता है देख के कि कितनी डेस्परेशन है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्लैमरस इवेंट एंड व्हाट दे डोंट नो इज दैट दे आर नॉट really missing out on anything. I mean, me being a journalist, मुझे as a duty वहाँ जाना पड़ता है और कभी कभार तो मैं मुसीबत समझ के जाती हूँ because you know I have to get up early, I have to get my hair done, I have to you know wear high heels and I have to put on makeup and everything. It's very exhausting like that. So खैर एक तो ये interesting चीज़ होती है। दूसरा ये होता है मुझे ये बताओ ना कि when was the last time you were not invited to an after party? Well that after party तो सबसे सायरा किसने नहीं बुलाया मुझे बताओ, मैं अभी उसको no that happens to me. So अभी I was in London and I was covering Jemima Khan's movie What's Love Got to Do with It, जो अभी पाकिस्तान में भी रिलीज हुई है और मैं उसका प्रीमियर UK में कवर कर रही थी for my publication. और all the Hollywood stars were there. मतलब some कुछ तो उधर थे because I used to feel कि मुझे तो 13 साल हुए काम, मुझे अब celebs को देख के अब उस तरह नहीं होता oh my god what a big celebrity. But once I was there so many big names, like there was Emma Thompson, there was Shekhar Kapoor, then there was Monica Lewinsky, there was Minnie Driver और कुछ के तो मैं नाम भी मुझे याद नहीं आ रहे अभी. So they were there. हमारे obviously पाकिस्तानी stars भी थे, सजल was there, अली रहमान was there. उनके साथ तो खैर मतलब घर वाली ही बात है quite literally. लेकिन जब इतने हॉलीवुड सेलेब्स को मैंने देखा तो I got a chance to go and speak to them, but when I tried to open my mouth nothing came out because I was so starstruck, you know. Yeah. So खैर anyway उसकी एक आफ्टर पार्टी हुई थी. I think Soho में उसकी आफ्टर पार्टी हुई. Obviously I was not a part of it because Hollywood में I'm not an insider. यहाँ पर तो मैं हूँ, everybody knows me and I go. भाभी से हम शिकवा तो कर सकते हैं ना. अच्छा नहीं किया आपने. बिल्कुल कर सकते हैं. हमारी फ्रेंड को आपने नहीं बुलाया आफ्टर पार्टी में. आफ्टर पार्टी पे नहीं बुलाया. सो उसकी आफ्टर पार्टी की पिक्चर जो मैंने देखी तो मैंने कहा हाउ वंडरफुल इट वुड हैव बीन हैड आई बीन अ पार्ट ऑफ इट. So yeah, मतलब obviously it happens. तो सायरा लेकिन इसके इर्द गिर्द एक पावर स्ट्रगल भी तो है ना. If you're not invited to a after party or let's say not even invited to an event, तो आपका जो है वो you know आपकी जो पावर है या आपका जो क्लाउड है वो भी तो थोड़ा सा कम फील होता है ना. देखने वालों को होता है कि यार ये क्यों नहीं थी या ये क्यों नहीं था वहाँ पर उस इवेंट पे. हाँ वकास, ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें sometimes I do not get an invite, but honestly I'm really glad that over the years I have cemented myself as a prominent lifestyle journalist कि मुझे invites left, right and center आ रहे होते हैं. मतलब I
open my home's door and there are giveaways and there are invites और so जब कभी मुझे किसी इवेंट का नहीं आता तो ऑनेस्टली मैं शुक्र करती हूँ कि मुझे नहीं आया, बिकॉज फिर मुझे वहाँ भी हाजिरी लगाने के लिए जाना पड़ेगा. तो लेकिन अगर कोई इम्पोर्टेंट इवेंट है जिसका मुझे इन्वाइट नहीं आया है तो आई एम ओके विद दैट, बट द नेक्स्ट टाइम दे विल कॉल मी टू फॉर अ फेवर और एनीथिंग, सो आई एम ऑब्वियसली गोइंग टू रब दैट ऑन देयर फेस. सो जहाँ पे पावर की आप बात कर रहे हो तो इवेंट पे अगर नहीं बुलाया तो पोस्ट इवेंट तो मुझे भेजनी है ना उन्होंने पेपर में लगाने के लिए, सो दैट इज इन माय हैंड्स. अब वो मेरे पे है कि मैं अपना गुस्सा निकालूं या मैं ना निकालूं. So being the entertainment editor, Saira can do that. लेकिन you know I struggle with that. मतलब मैं इतना social नहीं हूँ, मुझे problem होती है invites आते हैं, but you know मैं message करके वो थैंक्स कह के तो वो कर लेता हूँ, मैं नहीं जा पाता. But you know then they stop sending you invites. Of course that also happens. You know वो भी है, but I feel कि if it's your job and you know जो PR वाले हैं जो आपको वो invites वगैरह भेजते हैं वो भी एक पावर फील करते हैं ना इस चीज में कि वो आपको अगर एक्सक्लूड कर देते हैं उस लिस्ट से तो you know वो अगर आप उनके कोई फेवर नहीं दे रहे उनको तो वो भी एक पावर स्ट्रगल है ना, वो भी एक एंगल है. बिल्कुल है. तो यू नो उसको वो भी एक इंडस्ट्री का पार्ट है. बिल्कुल है. हाउ इज इट फॉर यू? मतलब वेल ये मेरे साथ हुआ है बहुत दफ़ा हुआ है. और पहले when I didn't know any better, so I actually used to pick up the phone and have a verbal spat with them. ठीक है. और जहाँ पे I used to be exercising my position, they used to be exercising their control. But वही मैं बता रही हूँ कि over the years I've learned to be okay with that. Because अगर एक आपको नहीं बुला रहा या एक आपको invite नहीं भेज रहा तो there are 1,000 others who are doing that for you. So it doesn't really matter अगर एक अपना कोई grudge निकाल रहा है या आपको जानबूझ के नहीं बुला रहा कि उसको पता है कि अगर आपको ना बुला आपको बुरा लगेगा. So that's okay. I'm very cool and calm with that. Saira, तुम्हें पता है सायरा जो है वो फूड रिव्यूज वगैरह में भी oh yes she is there and I love doing that and she is लाहौरी हो और yeah definitely but सायरा जो है ना वो मतलब हाई एंड वाले देसी वाले नहीं खाबे नहीं तो सायरा does that as well. सायरा वो वाला सीन जरा बताओ ना कि हमारी ऑडियंस के लिए how is that experience being able to go to different restaurants and review them? So food business is very lucrative in Lahore, especially if you talk about Lahore, because Lahoris love to eat और they eat with their eyes. I feel तो जो जितना tempting आपको कोई offer आ रही होगी या hoardings लगी होंगी तो you know Lahoris are just going to flock there and they're just going to have a good time there. अभी Tim Hortons का जो issue हुआ था तब I was not in the country. So मैंने जब social media के ऊपर pictures और videos देखे I was like what is happening in Lahore? ये क्यों करने में है? और पहले तो मुझे लगा कि ये forged pictures होंगी, ऐसा हो नहीं सकता. But on वो Sunday, अभी भी lines हैं. Yes, on Sunday, my mother asked me to take her out, and I went out with my mother, and we went to one Tim Hortons. I was in phase 6, and unbelievable. There was such a long line कि हमें चक्कर आने लग गए. And my mother was like, ये क्या दे रहे हैं बेटा? ये ऐसा क्या दे रहे हैं जो यहाँ पे? और honestly, all they were giving was coffee and donuts. And for coffee and donuts, there was such a long line. And so then we went to the Raya branch. The same was there. But I think it's a good thing. I mean, if people want to enjoy and they want to try, or if people don't have access to go to Canada or Dubai or London to have Tim Hortons, and अगर उनको लाहौर में ये chance मिल रहा है, so why not? I mean, जो privileged class है, जिन्होंने Tim Hortons, you know, बाहर के मुल्कों में try किया हुआ है, तो it's easy for them to say oh my god look at Pindu Pakistanis what are they doing इतनी लंबी लाइन. So I feel कि अगर कोई afford नहीं कर सकता बाहर के मुल्क में और उसको पाकिस्तान में ये चीज़ मिल रही है तो why not? Going back to your question regarding food, I feel that the food market in Lahore, Waqas, is so great now कि आप यहाँ पे आपको हर मुल्क का cuisine अब मिल रहा है. You know, there is Thai, you can have sushi here, you can have Bangladeshi food, there's Greek food, then there is Chinese, and there are all sorts of कि जब कोई बंदा पहली दफ़ा आजकल के माहौल में अगर बाहर के मुल्क जाए तो उसको वो वाली वाउड फीलिंग्स नहीं होंगी because you're getting every
every kind of cuisine that there is in Pakistan. आप सिर्फ food की बात ना करो, shopping malls लाहौर के इतने amazing हैं. I mean, you go to Emporium, you go to Packages, you go to several others, और अभी भी there is like a new mall opening at every nook and corner. ठीक है? That when I went abroad, वहाँ पे, I mean, obviously you can't compare the malls because वहाँ पे तो the shopping malls are on a मतलब 10 times larger scale. But even then, I wasn't wowed like that because मैंने लाहौर में ही इतने amazing malls में देख चुकी हूँ. So I feel that the businessmen, the entrepreneurs, the franchise owners, they're doing a really good job in providing Pakistanis the kind of food that is available abroad on the same taste and quality and levels. तो अभी ये देखो ना कि अभी तो मतलब हाइटीज में सुशी यहाँ पर कुछ मेन्यूज में वो भी चल रही है. बट यू नो द थिंग इज कि हमारे यहाँ भी काफ़ी ऐसा है कि कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी अमीर हैं और वो उनकी ज़रूरियात भी हैं, सो वो उनके लिए फैसिलिटीज़ भी हैं, सो वो वाला सीन है. बट क्या है कि वो क्योंकि वो डिस्पैरिटी इतनी है ना कि वो फिर इस वजह से इस तरह के कमेंट्स वगैरह भी आते हैं. Exactly. अभी आई वेंट टू कमर्शियल एरिया, वो क्या है फेयरवे कमर्शियल्स के नाम से ना, राया में, डिफेंस राया में. इट लुक्स फैबुलस, इट लुक्स अमेजिंग. हाँ, वो इतना जबरदस्त है कि मैं तो देख के हैरान रह गया यार. ये तो सीन है मतलब. बिल्कुल, तो इट्स सो कूल. इट इज. तो थिंग इज के एडवांसमेंट होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, और वो वाला मामला है ना जो वो होने चाहिए. एज यू सेड कि टिम हॉर्टन्स में अगर कोई जाके खड़ा होना चाह रहा है तो फिर हो जाए, वो वेट कर लें, और उनको अगर वो चीज मिल रही है तो और उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो दुबई जाके टिम हॉर्टन्स ले. आई मीन बाकी प्रिविलेज क्लास, आई मीन इवन आई हैव हैड इट इन दुबई, और अभी तक पाकिस्तान में आई हैडंट हैड इट. बट फॉर दोस पीपल हु कांट अफोर्ड टू गो अब्रॉड, आई मीन इफ दे आर हैविंग समथिंग जो बाहर की फ्रेंचाइज इधर, सो लेट देम हैव इट मैन, यू नो. सारा किसी को कॉल करते हैं कि हमें ना लाइन स्किप करवाएं. Yeah, that can be arranged, I think. Because you know this is happening. People are they're posting their stories on Instagram and also on TikTok. They're saying कि ये अवाम खड़ी है ना, वो गाड़ी में अपने गाड़ी में सर्व हुआ है. मैं कहा अच्छा ये एक्स है तो हम ही फ्लेक्स कर ही लेते हैं, फिर मतलब कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते. पाकिस्तान है, यहाँ पे सफारी से सब कुछ हो जाता है. पर वो हम कर नहीं रहे, हम कह रहे हैं ऐसे क्या जरूरत है कॉफी के लिए इतना जो है ना वो. और उनका जो टिम हॉर्टन्स का जो स्टाफ होगा वो तो इस वक्त जो है तो प्रॉपर ना VVIP प्रोटोकॉल में होंगे. उनके जितने भी रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स होंगे. एग्जैक्टली उनको तंग कर रहे होंगे कि हमें भी कराओ. हाँ. अच्छा, लेकिन सारा ये बताओ कि do you feel कि इस तरह होता है कि when you go to a restaurant, जो आपके लिए खाना तैयार होता है वो थोड़ा सा बेहतर होता है, और जो नॉर्मल तौर पे जो खाना सर्व होता है थोड़ा सा मतलब हल्का होता है. हाँ, बिल्कुल ऐसा बहुत दफा हुआ है. ऑब्वियसली बिकॉज इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स अब खोल रहे, जैसे मैं कह रही थी पहले कि द लाहौर फूड मार्केट इज़ वेरी लुक्रेटिव. यहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट खुल जाए, इट्स बाउंड टू डू गुड. एंड आई लव द लाइन दैट यू सेड कि लाहौरीज ईट विद देयर आईज. या दे ईट विद देयर आईज. जितना उनको टेम्प्ट करोगे वो उतना. सो बिकॉज इतना प्रॉफिटेबल है लाहौर में फूड वेंचर करना कि मुझे ऑलमोस्ट लाइक एक हफ्ते में 3-4 फूड रिव्यूज के इनवाइट्स मुझे आते हैं. और ऑब्वियसली व्हेन आई एम गोइंग देयर तो स्टाफ को पहले से पता होता है कि डेली टाइम से सायरा आ रही हैं, यू नो यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू गिव हर व्हाटएवर शी वांट्स. सो या आई मीन उसके 2-3 हफ्ते के बाद कोई मुझे बोलेगा कि यू नो आई वेंट टू दैट रेस्टोरेंट एंड द फूड वाज क्रैप, एंड आई बी लाइक नो बट व्हाट आई वाज सर्व्ड वाज सो गुड, हाउ कैन दैट बी. तो या मतलब इस तरह भी होता है. हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए. आई फील कि everyone should be treated equally, not because आपको एक अच्छा वो चाहिए. अच्छा, तो सायरा आप प्लीज टेल मी कि यू नो एक लड़की को स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. इन एनी केस ऑफिसेज में आप चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, वो सारा हम मर्द जो है ना पहलवान जो है वो छाए हुए हैं. सो हाउ वाज इट फॉर यू, मतलब व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड इन योर करियर? Vikas, so when I started out, I was only 22 and I was working in an office जहाँ पे the quota of men and women was almost equal. Okay. But आहिस्ता I realized कि I was now working in a male-dominated office. आहिस्ता करके when the girls left, किसी की शादी हो गई, कोई work की commitments की वजह से कहीं और job मिल गई, कुछ पढ़ने लिखने बाहर चली गई, तो आहिस्ता मैं I stayed focused and committed.
it. Because I wanted to learn more about journalism. I wanted कि मैं इसी फील्ड में मकाम बनाऊँ, इसी फील्ड में फ्लरिश करूँ. So I realized कि all of a sudden मेरा office बहुत male dominated हो गया था. But even then I feel like I was one of those lucky ones कि मैंने कभी भी इस चीज़ को महसूस नहीं किया कि मैं एक male dominated office में हूँ. Because the men around me, the boys around me, they were very, very decent and very liberal when it came to women. मुझे कभी feel नहीं हुआ कि oh my God, I'm not dressed appropriately or I'm not looking right or you know there are eyes on me because हमारे ऑफिस के late hours भी होते थे और हमारी तो होती ही evening shift थी but never was a time कि मैंने uncomfortable feel किया हो. So but ऐसा हर एक लड़की feel नहीं करती है. जो मैं horror stories सुनती हूँ from girls who are working in offices और सिर्फ late night shifts वाले नहीं, even daytime shifts वाली जिन स्ट्रगल से वो गुजरी होती हैं, तो एवरी टाइम आई लिसन टू द स्टोरीज आई थैंक गॉड कि मैंने ऐसा महसूस नहीं किया. ऑल्सो आई फील कि अगर आप एक लड़की हो और आप अपना बैग उठा के जॉब करने जा रहे हो तो आपको एक थिक स्किन अपने ऊपर डेवलप करनी है बिकॉज यू आर बाउंड टू बी यू नो द विक्टिम ऑफ सर्टन काइंड ऑफ कॉमेंट्स और एंगर इशूज़ फ्रॉम योर कॉलीग्स और एनी काइंड ऑफ. मैं सिर्फ हरासमेंट उस वाली हरासमेंट की बात नहीं कर, मैं सिर्फ सेक्शुअल हरासमेंट की बात नहीं कर रही हूँ. मैं हर किस्म के हरासमेंट की बात कर रही हूँ. यू नो देयर आर कॉलीग्स अराउंड यू जिनको टेम्पर इशूज़ होते हैं, जिनको सिक्योरिटी इशूज़ होते हैं, जिनको जेलसीज होती हैं, तो वो समटाइम्स दे ट्राई टू पिन दैट ऑन यू. तो आपको एक थिक स्किन अपने ऊपर डेवलप करनी है टू डील विद ऑल ऑफ दिस. लेकिन ये आई थिंक विद मैच्योरिटी आती है, ये विद एज आती है. तो मैंने तो इंडस्ट्री से क्या challenges आते हैं when you are out there and dealing with all the designers and all those Vikas, people? I have had my share of these struggles. Without naming anybody, I would tell you that when I started out, I wanted to interview people and basically I wanted to see my byline in the newspaper. That would make me feel accomplished. You know, look, I've achieved something, that my name is in a mainstream leading publication. So ये गलती मैंने ये की कि मैं अकेले ही निकल जाती थी to interview big wigs, right? अपने contacts के through, किसी के help के through. और मैंने एक दो दफ़ा harassment भी feel की. और yes, I definitely did because and you know 22-23 is an extremely vulnerable age. At that time when somebody is trying to harass you sexually or in any kind of way, so you get a little confused and you don't really know how to deal with it. But thankfully I came out of it. और अब तो obviously it's been so long and now I know my way through men like these and through people like these के मतलब it's something that now I steer clear of all of this. ये designer था कोई? No, this was a leading producer. Okay. Yeah. This was a leading producer and then there was an actor also, a very renowned actor. So yeah. Are they still around? Yeah, very much. Yes. So, but this happened to me years ago, you know, like 10, 11, 12 years ago. जब मुझे start किए हुए भी बहुत कम अरसा हुआ था. और तब मैं बहुत छोटी थी and just like I said, बहुत vulnerable age ये होती है. So you don't really know कि आपने rudely किसी को snub करना है या आपने politely करना है. So, but thankfully you learn your way over the years और आपको समझ आ जाती है कि किस चीज को किस बंदे को कैसे मैनेज करना है. बस इस तरह के challenges जो हैं ये होते हैं. Definitely. And you know, people have it worse. People have it worse. I mean, if people tell you about their struggles, the girls they do, तो आपको अपनी तो कुछ भी नहीं लगेंगी उनके सामने. No, I really like that when you said कि you know मेरा ऑफिस में मुझे थोड़ा सा सपोर्ट था या वो बेहतर था, but at the same time you know you were ready to acknowledge कि जिनके साथ होता है उनके साथ तो बहुत सारे वाक़यात होते हैं और वो सारी चीज़ें जो है ना वो चलती हैं. अच्छा सायरा, आप ये बताएं कि what's your favorite food, मतलब खाने में क्या पसंद है? Wow, I love this question. Well, I eat everything. I would eat vegetables and chicken and food and fast food and everything. And my taste palette is has now developed. I mean, I'm open to trying out new cuisines. Why? Because you know, Lahori food market provides you with everything. It's not like because I've been abroad, that's why my taste palette is very developed. While
living in Lahore it is. I mean, इतनी अच्छी बात है कि people who have never been out of country, even they know how to hold chopsticks and eat sushi with it. So yeah, I mean, I would eat everything and anything. लेकिन yes, एक जो मुझे फ़र्क feel ये होता है कि if I'm having KFC or McDonald's or Papa John's here in Lahore and then I'm having it abroad also, so there is a difference that you feel. Definitely you feel that. It's not about कि Pakistan, oh my God, our country is so corrupt that they're giving trash food to the people. It's just that the making techniques are very different and ingredients are different. Dealing with the food, वो थोड़ा सा different. But I would say that there is nothing like Pakistani food. Pakistani food rocks. I mean, I love Pakistani food. All kinds of, you know, you name it. I love it. जब हम abroad जाते हैं तो पहला अरसा तो आप fish and chips और burgers और pastas वगैरह खाते रहते हो. But there comes a time when you're actually craving, you know, homemade Pakistani paratha. And I'm the sort of person that, you know, because I write on food and because I feel so passionate about food that, you know, pie and gurde kapure and maghaz and nihariya, I love that kind of food. So, you know, like a desi like me, when I'm traveling abroad, after 4-5 days, I start craving this kind of food. So मुझे जो है ना वो मगज I am mad about मगज. Same. तो you know कुकूज कमाल बनाते थे. वो फिर उनके जो भतीजे थे उन्होंने टेक ओवर कर लिया and they have messed up the taste. अच्छा, I have the one on McLeod Road, Nishat. Okay, so मेरा भी McLeod पे अब नया spot है, but it's Shifa. अच्छा, I go to Shifa. I've had that too. Yeah, it's amazing. I mean, Shifa का थोड़ा सा different They make it with keema, I think, and it's really good. Have you tried their gurde ka pure with keema? नहीं, I've only tried their मगज वो मैंने try किया. I have बाकी चीजें मैंने करनी है उनकी try, but अभी तक मैं सिर्फ मगज तक पहुंचा हूँ. Their champs are also really good. I mean, यहाँ पे चांप खाते हैं, बाहर के मुल्क में जाके जब आप chops खाते हो and you eat it, you're like, what is this? I mean, they should come to Pakistan and have it. मतलब वहाँ it's really bad. बट निशात का भी जो है ना मगज ब्रेन मसाला वो भी बहुत अच्छा है. थोड़ा सा डिफरेंट है, उनकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, बट शीफा की जो है ना वो. And also because I have grown up in a family that enjoyed this kind of food. I mean, nishat ka magaz, gurdas and everything was introduced to me by my father, and he ensured that his daughters have, you know, that kind of exposure to this kind of food. I mean, because I see girls, unko aisa koi exposure nahi hota. They would make faces if I'm having gurdas and everything. So they were just stinking. No, I don't want to have it. No, it's हालांकि what they don't know is what they're missing out. True. ये इनका ही तो सही टेस्ट है. You know, ये जो है ना चिकन मिर्च मसाला डाल के चिकन बना लिया, उसका कोई नहीं है. जो चीज वो है जिसका अपना मीट है या मगज है, इनका अपना एक टेस्ट होता है और वो उसको करना. तो मुझे बताओ कि ये फैशन में क्या क्या चल रहा है आजकल, क्या सीन है फैशन इंडस्ट्री जो हमारी, कलेक्शंस कौन कौन सी अच्छी आ रही हैं, कौन सा ब्रांड जो है इस टाइम जरा अपवर्ड ट्रेंड कर रहा है, क्या सीन है? विकास, लोगों के पास बहुत पैसा है, आई बिलीव. लॉन आने से पहले ही प्री बुक्ड हो जाती है इन प्लेसेस लाइक फैसलाबाद एंड सियालकोट एंड चिन्योट एंड शेखुपुरा. वहाँ पे पहले से ही जो आंटीज होती हैं वो पूरी लॉन की कलेक्शंस को प्री बुक कर लेती हैं. दे डोंट मार्केट में आने से पहले, हाँ जी, मार्केट में आने से पहले ही वो प्री बुक हो जाती हैं कि सिर्फ अगर आप जर्नलिस्ट हो और आपके अच्छे कनेक्शंस हैं विद द फैशन डिज़ाइनर और द ब्रांड और आपको कोई सूट चाहिए तो वो सिर्फ आप ही को मिल सकता है. आम लोगों के लिए लाहौर में वो क्योंकि प्री बुक हो जाती हैं, मिलना मुश्किल हो जाता है. तो मैं हैरान हूँ कि दीज विमेन दे डोंट इवन सी हाउ मच इट इज़ फॉर. दे हैव सो मच मनी लाइंग अराउंड. ठीक है, टच वर्ड, ठीक है, माशाल्लाह, इफ दे हैव इट तो ठीक है, बर्न इट. बट सो it's like what I was saying earlier, fashion. Okay, so now I'm just going to focus on fashion. Fashion weeks are on a decline, but there are a lot of exhibitions happening. और अच्छी बात ये है कि हमारे फैशन के जो भी हैं लोग, उनको बाहर शोकेस करने का बहुत भरपूर मौका मिल रहा है. I mean, I'm really happy कि पेरिस जैसे फैशन कैपिटल में अभी AIFT, Asian Institute of
फैशन जो भी उसके उस वाले अदारे के स्टूडेंट्स ने पेरिस में अपने सारी वो दिखाई है कलेक्शन, एंड आई वाज लुकिंग एट इट एंड आई फेल्ट रियली प्राउड. आई मीन मोमल शेख वाज देयर, हसन रिजवी वाज देयर, एंड देयर वर सो मेनी अदर्स वर देयर who were there to support them. So our fashion scene has now gone global. I mean, if you look at Bollywood stars, there is Kareena, there is Karishma, there is Janvi Kapoor, there is Jacqueline Fernandez and Nora Fatehi. So many of these women, Sara Ali Khan, they are wearing more Pakistani fashion people than they are wearing their own. So it's amazing, and I feel really proud to see that happen. Mohsen Ali Ranjha, he dressed up Ranveer Singh. Faraz Manan, he dressed up Shah Rukh Khan, and all. मतलब आपको हाँ जी बहुत आपको दिल से खुशी होती है. आजकल तो देयर इज सो मच हैपनिंग बिकॉज स्प्रिंग इज हेयर, और लॉन की कैंपेन्स की प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट भरपूर चल रहे हैं. एवरी डे यू पिक अप योर फोन एंड यू वुड सी अ न्यू टोटली न्यू पर्सन कमिंग अप विद देयर, ठीक है ना, जो भी होती है. और सोशल मीडिया के थ्रू उनको एडवर्टाइज करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है. पहले तो होर्डिंग्स और उनको बिलबोर्ड्स वगैरह बाय करने पड़ते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया ही के थ्रू एडवर्टाइज करते हैं, विच इज मतलब इतनी ज्यादा उनको उस तरह से कॉस्ट नहीं करता है. पहले तो लाखों दे के वो होर्डिंग्स और वो पैम्फलेट्स और ब्रोशर्स बना रहे हैं और टीवीसीज वो चला रहे हैं. अब तो टीवीसीज का ट्रेंड भी खत्म हो गया है बिकॉज पीपल डोंट वॉच टीवी नाउ, इट्स एवरीथिंग इज देयर ऑन योर फोन. और आई थिंक कोविड की वजह से अब शॉपिंग का ट्रेंड भी चेंज हो गया ना, लोग घर से बैठे बैठे आप करते हैं द ट्रेंड ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग. Although I don't like it, but my sisters do it, my mother does it, all my friends do it, everybody does it. So मैं पहले ही ऑर्डर कर देता हूँ सायरा कि जाना ना पड़े. लेकिन उसके अंदर ऑर्डर कभी गलत नहीं आता. मुझे तो मैं तो इसलिए नहीं करती कि साइज का प्रॉब्लम होता है, लाइक ऑर्डर कभी गलत वो हो जाता है. वो ज्यादा अनस्टिच की तरह जाना चाहिए ना. that is देखा ना, एज अ हस्बैंड आई हैव टिप्स ऑन दैट. that's वो भी है. वेल दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे. सायरा ने हमें इतनी इनसाइडर इंफॉर्मेशन दी. सायरा, थैंक यू सो मच फॉर दैट. इतना मजा आया ये गुफ्तगू करके. It was a true pleasure to have you on the podcast. You're welcome, Vikas. Thank you for having me. Yes, Great thank time. you so much. और आप लोग जो हैं, you make sure that you subscribe to our channel and make sure you press the bell icon so that you can, get the notification for our videos. आपके देखने का बहुत शुक्रिया. Bye bye.